شیر سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے مادر چوت نور حسن گدھے کے بچے سور کے بچے تم کو کیا لگتا ہے ہم ریکارڈنگ کاٹ کے بھیجیں گے کتنا بڑا سور ہے یار یہ ارے بہن جب میں جو ریکارڈنگ چالو کیا تھا نا تھوڑا لیٹ کیا تھا رے سور تو 24 گھنٹہ چالوے رکھتا ہے گدھے کے بچے ہم ڈرنے والے ہیں کیا سارے ہمارے پاس ثبوت ہے ہمارے پاس دلیل ہے تیرے جیسے ڈرائیور کوئی تھوڑی نا ڈرائیور بن گئے اور جو ہے کہ صحیح بخاری کی بات کر رہے بخاری مسلم کی بات کر رہے بدتمیز کہیں کا سور کہیں کا کتا کہیں کا میں ہوں محمد اعظم تجھے انگلش بولنا نہیں تو وائس نہیں ہوتا وائس ہوتا وائس گدھے کے بچے سالے وائس بولے تو سالے سور VAICE وائس وائس بولے تو VOICE وائس کتا کہیں گا کیا جانتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے ڈرائیور ہے کیسے بات تجھے کچھ آتا نہیں ہے مگر حضرات یہ مولانا ہیں یہ سب مولانا یہی ہیں سب اکٹھے ہیں یہ ہے دیکھیے اس کا نام بھی لکھ رہا ہے یہاں پہ محمد شہادت رشیدی یہ ہلکے سے میں نمبر کے نیچے اور یہ دیکھیے اس کا پورا وال پیپر ہے اور اس کا نمبر بھی دے دیا ہے میں نے دیکھ رہے ہیں حضرات ان کا نمبر بھی ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہیں مولانا ہیں دیوبندی جماعت کے عالم ہیں یہ لوگ یہ دیکھیں یہ فون کر کے گالی بک رہا تھا واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کیا تھا اس نے یہ دیکھیں اس کا میں نے فوٹو کھینچ دیا بس میں یہی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں ہم کس طرح بات کر رہے ہیں دیکھیے میں نے کہاں بھیجا ہے اس نے جناب پوری وائس یہ ہے آپ نے کاٹی کیوں میں نے اس کو بولا جناب آپ کی وائس نور حسن گدھے کے بچے سور کے بچے تم کو کیا لگتا ہے ہم ریکارڈنگ کاٹ کے بھیجیں گے کتنا بڑا سور ہے یار یہ ارے بہن جب میں جو ریکارڈنگ چالو کیا تھا نا تھوڑا لیٹ کیا تھا رے سور تو 24 گھنٹہ چالوے رکھتا ہے گدھے کے بچے ہم ڈرنے والے ہیں کیا سارے ہمارے پاس ثبوت ہے ہمارے پاس دلیل ہے تیرے جیسے ڈرائیور کوئی تھوڑی نا ڈرائیور بن گئے اور جو ہے کہ صحیح بخاری کی بات کر رہے بخاری مسلم کی بات کر رہے بدتمیز کہیں کا سور کہیں کا ہلو ہلو جی نیٹ ورک نہیں ہے کیا ادھر السلام علیکم جی کون بول رہے ہیں بھائی جان ہیلو سن رہے ہیں نا آپ کون بول رہے ہیں ہاں میں نور حسن بول رہا ہوں آپ کا مس کال تھا کئی مرتبہ مس کال آیا آپ کا نور حسن بول رہے ہیں جی نور حسن بول رہا ہوں جی گرو میں غالب بول رہے ہیں موبائل بھر جا رہا ہے اتنا کیوں بحث کرتے ہیں آپ لوگ جناب میں تو نہیں کہتا کچھ دیوبندی لوگ ہیں سرفرے وہ گالیاں بکتے ہیں ارے سب جب وہ ہمارے برا بھلا کہتے ہیں تو بھائی خراب کرتے میں ڈرائیور ہوں ایک عام انسان ہوں عوام میں سے ہوں ٹھیک ہے میں نے ان کو پہلے ہی کہا کہ جیسا آپ بولو گے میں ویسا بول سکتا ہوں پر اس بدتمیزی کو کم کرو بدتمیز نہ بولو حالانکہ وہ مجھے بار بار بدتمیزی کر رہے ہیں گالی بک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو جو کتابیں دکھاتا ہے دیوبندیوں کی وہ مت دکھا کر اور تو یہ کام کرنا بند کر تو ڈرائیور ہے تو گاڑی چلا ارے بھائی اگر تم کو کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے کہ میں نے جھوٹ بولی ہے غلط بولی ہے تو میرے اوپر اس کی جو ہے کارروائی کرو کہ ہاں یہ چیز تو نے جھوٹ بولی ہے چل اس کا ثبوت دے یہ کہنے کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ابھی میں نے فتاوی رشیدیہ کا اس کا تذکرۃ الرشید کا حوالہ بھیجا ہے جس میں رشید احمد گنگوہی نے کہا ہے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکانا ہوگا اور ایک میں لکھا ہے جن لوگوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی ہندوستان کو آزاد کرایا تھا تو ان لوگوں کو باغی بتایا اور کہا کہ انگریزوں کی حکومت کا جو زمانہ ہے وہ لوگوں نے قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا قدر کی نظر سے نہ دیکھا بغاوت کا عالم قائم کیا اور شروع میں لکھتے ہیں وہ بالکل شروع بات کہاں سے کرتے ہیں کہ جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی ان کی نسلیں دیکھ رہی تھی جن کے جو ہے سروں پر موت کھیل رہی تھی یعنی کون انگریزوں کے خلاف جو جنگ کر رہے تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا قسم کھائی
उन लोगों को बाकी बताया जा रहा है। बताइए, तो ये देवबंदी हजरात अंग्रेजों के गुलाम है कि नहीं है? अंग्रेजों को वैसे ही थोड़ी पैसा मिलता है यार। 600 रुपए महानामा किताब का नाम है मकालिम मुतसद्रैन, थानवी को 600 रुपए महानामा मिलता है यार, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। दारुल उलूम देवबंद में बाबा रामदेव को बुलाते हैं यार ये लोग, और वो बाबा रामदेव इन सब मौलवियों के सामने कहता है कि मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे देव की पूजा की जाती है, जहाँ देव की बंदगी की जाती है। सुनिए, आपको गुरु में किसने जोड़ा है? मुझे क्या मालूम किस लिए जोड़ा है यार, ये देवबंदी परेशान करते रहते हैं खामखा। आप निकल क्यों नहीं जाते हैं ग्रुप से? मैं बुज़दिलों में से नहीं हूँ, मैं हक पर हूँ, हक पर। अगर उनके अंदर कुछ हिम्मत है जिसलिए उन्होंने मुझे ग्रुप में जोड़ा है, और 2.5 आदमी को रख के उन्होंने ग्रुप में जोड़ा है यार, और उनके सिर्फ अपनी ही टीम के लोग होंगे वो सारे के सारे। अरे डर इतना है इनको कि कहीं आवाम में जो है हमारा पोटला ना खोल दे पूरा, इतना डरते हैं ये लोग। 2.5 आदमी रख के जो है ग्रुप में मुझे शामिल किया, और फिर भी गाली बक रहे हैं वो मुझे। बताइए, क्या ये ज़ेबा देता है? मौलवी होके गाली बक रहे हैं। शहादत नाम है, वो बहुत बड़ा। हाँ, शहादत ही नाम है, सही बोला आपने, शहादत नाम है उसका। और तरह के बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मौलाना है वो, बहुत बड़ा मौलाना है। हाँ यार, तो यार जब वो बहुत बड़ा यार मौलाना है तो फिर तो गाली नहीं बकना चाहिए। अरे आप जो मूड खराब कर देते हैं, आप गाली देते हैं, उधर से गाली नहीं यार देखो। अच्छा, आप मेरी गाली देख रहे हैं कि उसकी गाली देख रहे हैं? मैंने तो नहीं बकी यार गाली, यार झूठ बोल रहे हैं आप भी। मैं तो दोनों का रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। हाँ, तो जब वो हमारे किसी आलिम को गाली बकेगा, बुरा भला कहेगा और आला हजरत को बदकलामी के साथ बोलेगा, तो मैं उसको बख्श दूंगा क्या? मैं तो ड्राइवर हूँ यार, आम इंसान हूँ, अवाम में से हूँ यार। वो मौलवी होके माँ बहन की और किस किस की गाली बक रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? इतना जब बड़ा वो मौलवी है, सुनिए, इतना बड़ा जब वो मौलवी है और ईद की भी वो नमाज पढ़ाने गया है, और ईद की नमाज में भी है वो किसी को बोल रहा है, बता रहा है कि एक नूर हसन है, बरेलवी है, और वो ये बन गया है, वो बन गया है। तो बताइए, ये ईद की नमाज में कहने की बात है? वो मुझे जानते हैं। मोहब्बत से बात कीजिए यार, तेरी वो हम तो यार मोहब्बत से ही बात करते हैं। सुनिए ना, और वो हमारे गाँव के हैं, रिश्तेदार हैं। अरे यार, आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपके रिश्तेदार हैं तो आप तो अच्छे तरीके से जानते होगे उनको, हाँ, है ना? तो यार जब इतने बड़े आलिम हैं यार, वो इतने बड़े मौलवी हैं, तब तो गाली नहीं बकना चाहिए। माँ की, बहन की और किस किस की जो है वो गाली बक रहे हैं, और कह रहे हैं तूने मेरा फोटो भेजा है और तुझे अपनी माँ की, और ये वो, मतलब मैं कह नहीं सकता कैसे कैसे उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं यार। अरे आप ये काम कीजिए, ग्रुप से निकल जाइए, यानी तो मोहब्बत से बात। मुझे जिस तरह उन्होंने ग्रुप में शामिल किया है उसी तरह निकाल दें चैन से, नहीं तो मैं उन्हीं के ग्रुप में उन्हीं का रद्द करता रहूंगा इंशाअल्लाह। हमको मैं सुनते हैं, देखिए, हम जो कान में बोलते हैं वही जो मकान में बोलते हैं ना, वही मैदान में भी बोलते हैं। हम वो नहीं है जो कान में और मकान में बोलते हैं, हम कान और मकान में बोलने वाले नहीं है, ठीक है? हाँ, हम मकान और मैदान सब में बोलने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रहा हूँ मेरे भाई, समझ रहे हैं आप? 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रहा हूँ मैं, देवबंदियों की रग रग से वाकिफ हूँ। देवबंदी कितने बड़े मक्कार होते हैं और जाहिल भी होते हैं, समझ रहे हैं भाईजान? ये इतना बड़ा मौलवी होके जिहालत दिखा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो ये इनको ज़ेबा नहीं देता यार। इनको समझाओ, कहो यार तुम इल्म वाले होके, आलिम होके और इतने लोगों के रहबर होके यार गाली बक रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप रह रहे हैं कहाँ पे? मैं रामपुर रहता हूँ, अगर आपको मिलना है, मुलाकात करना है तो आइए। सुनिए, हमको मेरे यहाँ भी बहुत सारे हैं, मेरे यहाँ भी बहुत सारे देवबंदी हैं, और अल्लाह के फजल और करम से आज तक आपसे तो फोन पे बात हो रही है यार, ये आमने सामने बात नहीं करते मेरे भाई, ये आमने सामने बात नहीं करते हैं। मेरा तो ओपन चैलेंज है इन लोगों को कि अगर तुम हक पर हो तो अपने आप को हक पर साबित करके दिखा दो, और हम अगर बातिल हैं तो हमारा बातिलपन होना जो है तुम साबित करके दिखा दो। सामईन इकराम, आप हजरात ने इस ऑडियो को सुना। ये ऑडियो में कैसे कैसे गाली हमारे नूर हसन भाई को दे रहे थे। ये शहादत देवबंदी बहुत बड़ा मौलवी है, खुद इसके गांव का जो बात हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मौलवी है।
तो आप हजरात दूसरी ऑडियो सुनेंगे। ये ऑडियो 1 साल पहले की है जो आप हजरात ने सुना, और दूसरी ऑडियो अभी कल परसों की है, प्रेजेंट टाइम की है। उसमें ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। अब आप हजरात इस देवबंदी की मुनाफिकत को जाने और पहचाने, और अपने दोस्त, अहबाब, अहले वयाल सबको हिफाजत करे और इस शैतान से बचाए। ये दूसरी ऑडियो सुने और आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। हेलो जी। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? नूर हसन बात कर रहे हैं बरेलवी। आप कौन? जी, मैं शहादत देवबंदी बात कर रहा हूँ। अच्छा, शहादत देवबंदी साहब, कहाँ से? जी, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। कर्नाटक से, अच्छा जी, बोलिए। 1-2 सवाल था, वही पूछना था आपसे। आप मौलवी हैं या मुफ्ती या क्या है? मैं तालिब इल्म हूँ हज़रत। जी, तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म है? जी। ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं? हाँ, ईमानदारी अल्लाह के आपकी साथ। बात को सुन रहा है? हाँ, बेशक अल्लाह सुन रहा है। तो आप मौलवी नहीं है? नहीं, मैं आलमियत में पढ़ रहा हूँ, मौलवी नहीं हूँ। आलमियत कौन से क्लास में है? अरबी चहर रूम में हूँ। अच्छा, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको शहादत साहब? हमको झूठ बोलने में क्या, झूठ बोल रहा हूँ क्या? आपसे मेरी बात नहीं हो चुकी है? बात तो हुई भाई, मैं तालिब इल्म हूँ। उसी वक्त से मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुस्तनद आलिम नहीं हूँ, तो आप बात ही नहीं सुन रहे। देखिए, मुस्तनद आलिम एक होना एक अलग चीज है, और गैर मुस्तनद आलिम होना एक अलग चीज है। मगर आप आलिम हैं या नहीं है? आपने कहा कि मैं चारों में पढ़ रहा हूँ। क्या आप खुदा की कसम खा के बोल सकते हैं कि आप चारों में पढ़ रहे हैं? खुदा की कसम, मेरा दौरा नहीं हुई हजरत, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। क्या मौलवियत भी कोई दौर आता है क्या? अरे भाई, मौलवियत कोई दौर आता नहीं बोल रहा हूँ, मैं दौरे हदीस करूंगा तब ना आलिम बनूंगा। रे भाई, तो आप तो आज से कोई मौलवी थोड़ी हो, आप तो कई सालों से मौलवी हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। तुमने तो खुद अपने मुंह से कहा था कि मौलाना शहादत जो है वो ये मौलाना है। कौन? और इरफान नाम बता के आए थे ना तुम पहले मुझसे। नहीं, मैं तो पहले से आपको कह रहा हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद शहादत रशीदी है। मैं हाफिज कुरान जामियत रशीद आलमियत कर रहा हूँ। शुरू से वो ऑडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी है आपकी। हाँ, मैं तो जिसमें आपने कहा था कि मैं इरफान बोल रहा हूँ और ये सिम किसी और की है, वो मौलाना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आ रही हज़रत? ऑडियो तो झूठ नहीं बोलेगी ना, ऑडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ऑडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, ऑडियो थोड़ी झूठ बोलेगी, और लोगों ने सुना था उसको। हाँ, वो तो नहीं, हम तो सवाल खैर, अच्छा, कोई बात नहीं। तो किस अकीदे पर बात करेंगे आप मुझसे? मैं अकीदा ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मैं सवाल करना, 2-3 सवाल पूछना है आपसे। क्यों? जवाब देने की हिम्मत नहीं है? नहीं, मैं ऐसा करो, एक सवाल मैं करता हूँ, एक सवाल आप करो। भाई, आप सवाल करेंगे बाद में ना। मैं पहले ये कह रहा हूँ कि मैं जो जिस नियत से फोन किया हूँ उसका पहले जवाब दे दीजिए ना, फिर आपकी जवाब। बिल्कुल नहीं, उसमें क्या है? एक सवाल आप करेंगे, एक सवाल मैं करूंगा, और ये मैं कोई किसी के सवाल करने के लिए नहीं बैठा हूँ। नहीं, आप इससे पता ये चल रहा है आप जाहिल, महा जाहिल हैं क्या? मैंने कब कहा कि मैं आलिम हूँ? बोलिए, जाहिल से महा जाहिल है। नहीं, अच्छा, मौलाना रशीदी, तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो, और कब से जानते हो? नहीं, तुमको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और तुम वो पागल इंसान हो जो कुत्ते भी तुमको जानता होगा, कुत्ते वगैरह जानता होगा शायद। अच्छा, तो फिर ऐसे पागल इंसान के पास आपने कॉल क्यों किया? तुमसे बड़ा पागल कौन होगा? नहीं, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है ना वीडियो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे ये बात। नहीं, चलो, मैं पागल हूँ, आप मुझे पागल मानते हो, तो तुमसे बड़ा पागल कौन होगा जो तुम मेरे पास कॉल कर रहे हो? पागल को समझाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो तुम तो मुझसे खुद उल्टा सवाल करना आए हो, पागल कहीं के। तुम मुझे समझा कहाँ रहे हो? तुम तो मुझसे खुद सवाल करने आए हो। बेवकूफ, तुमको सवाल के जरिया से ही समझाऊंगा। ऐसा है शहादत रशीदी, तेरे जैसे चिल्ले के पिल्ले रोज कितने आते हैं, ठीक है?
ए बेवकूफ गधा, तुमको बात करने की हिम्मत ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि तुम्हारे अंदर में बात सुनने अबे की हिम्मत तो तेरे अंदर नहीं है, तू सवाल करके लेके आया है। हिम्मत तो तेरे अंदर नहीं है, हिम्मत होती तो सवाल नहीं करता। तू मुझसे कहता कि तू मुझसे इल्म गैब पर बात करिए, हाजिर और नाजिर पर बात करिए, जो है नूर व बशर पर बात करिए, इख्तियार रसूल पर बात करो, हाजिर नाजिर पे बात करो। हाजिर नाजिर पर, अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह हाजिर और नाजिर पर बात करेंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपका क्या अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं या नहीं, या अपने किसी उम्मती के पास तशरीफ ले जा सकते हैं या नहीं, अल्लाह की अता से, अल्लाह के हुक्म से? अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है। मैंने कब कहा कि हर जगह और हर वक्त? मैंने कब कहा? तो पहले कैद तो इस बात पे लगाई जाएगी ना कि हर जब मेरे आका जहां जाना चाहे जा सकते हैं, जिस्मानी तौर पर, हैं? जैसे कि आम इंसान जाता है हाँ उस तरीके से। हाँ, मतलब हिंदुस्तान भी आ सकते हैं। जहां उनका मन चाहे, जहां उनका जी चाहे, अपने जिस उम्मती के पास चाहे जा सकते हैं अल्लाह की अता से। अल्लाह ने उनको वो पावर अता किया है, कहाँ लिखा वो हुआ है ताकत जिसमें? कुव्वत अता की है। कहाँ लिखा नहीं है? तुम्हारा अकीदा है कि नहीं है, ये बोलो। हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह के नबी जहाँ चाहे वहाँ चले जाए। अच्छा। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो ये दिया है वो ये है कि वहाँ कब्र मुबारक में अल्लाह के नबी हयात हैं। अच्छा। उम्मत की जाती है। अच्छा। हफ्ते में 2 वो अल्लाह के नबी देखते हैं। अच्छा। और जिसका अच्छे हैं उससे खुश भी होते हैं, जो खराब हैं उनसे रंजीदे भी होते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही। इससे मैं भी जो है इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी इसको मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरे नबी पर मेरे जितने भी मोमिन बंदे हैं ना, हुजूर के उम्मती के जो है अमाल पेश किए जाते हैं हुजूर को, तो जो नेक होते हैं वो खुश होते हैं हुजूर उनसे, और जो गलत मतलब लोग होते हैं, जो गुनाहगार हैं, तो उससे हुजूर जो है वो थोड़ा तकलीफ में भी आते हैं। चलिए, आपने इस चीज को कबूल किया कम से कम। ये कबूल क्या नहीं, पूरे उलमा देवबंद का अकीदा है ये। अच्छा, ये अकीदा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से अपने किसी उम्मती के पास आ जा सकते हैं या नहीं? आ जा सकते नहीं, ख्वाब में आते हैं। बेशक जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा वो हुजूर को ही देखा है। अच्छा, जिस्म जिस्मानियात के साथ नहीं जा सकते? नहीं भाई, ये आपने कहाँ अता फरमाई? मिसले जिंदा के नहीं जा सकते, है ना? नहीं, ये नहीं जा सकते। अच्छा, अगर मेरा अकीदा ये हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी उम्मती के पास अगर जाना चाहें तो मिसले जिंदा के जा सकते हैं, तो मेरे ऊपर क्या हुक्म लगेगा शरीयत का? ये अकीदा आपका ठीक नहीं है। मतलब क्या है? कुफ्र है, शिरक है, क्या है? देखिए, आपका अकीदा ये है कि जब मिलाद होती है, ठीक है, पहले अब सुन लीजिए। मैंने मिलाद का नाम ही नहीं लिया है जनाब, बगैर मिलाद के मैं कह रहा हूँ, बगैर मिलाद के भी। मैं मतलब मिसाल समझा रहा हूँ यार आपको। नबी मनाते हैं, ठीक है, इसके मनाने के बाद जब सलाम के पेश करने के वक्त आता है तो आदमी खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि अल्लाह के नबी यहाँ पर आए हैं, हाजिर हैं। ये बोलते हैं नहीं बोलते? ये बात आप अपनी जुबान से पहले बोलिए। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमारा ये अकीदा ही नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहना चाहे, जहाँ तशरीफ ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बात बोल हमारे किस आलिम का अकीदा है कि महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ही होते हैं। बस एक का हवाला दो। एक का हवाला नहीं देंगे, आपका पूरा ये मौ के जितने भी उलमा है ना आपका बरेलवी का, वो पूरे यही अकीदा है। चलिए साबित कीजिए, एक किसी आलिम का हवाला पेश कीजिए। बहुत सारे हैं तो एक का कम से कम तो हवाला पेश कर मौजूद था ना उस मजलिस में, मैं खुद था वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि आप एक किताब दिखाइए, एक आलिम का कौल दिखाइए कि हाँ मुझे आते ही हैं, जरूरी है। हाँ, फिर ये क्यों बोलते हैं हजरत? फिर वही बात हुजूर के लिए चलो भाई। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक लिखते हैं कि हर मोमिन के घर में नबी मौजूद है, और जब तुम घर में दाखिल हुआ करो और कोई ना हुआ करे तो सलाम अपने नबी को क्या करो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। ये मुल्ला कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। जी हाँ, किताब के हवाले भेजे इसमें। खैर इस बात को तो अभी छोड़िए, वो हवाला भेजूंगा इंशाअल्लाह, और हवाला भेजूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले इस बात को क्लियर कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं आ जा सकते हैं या नहीं अपने किसी उम्मती के पास मिसले जिंदा? मिसले जिंदा नहीं आते हैं। नहीं,
اگر میرا یہ عقیدہ ہے تو میرے اوپر حکم کیا لگے گا شریعت کا؟ حکم میں نہیں لگانے والا ہوں حضرت. کیوں نہیں لگاؤ گے جناب؟ کیوں حکم لگانا پڑے گا. دیکھیے امام بخاری سے لے کر لگانا پڑے گا. حکم لگاؤ پہلے. اچھا چلیے میری بات پہلے سنیے آپ. پہلے حکم لگاؤ بعد میں بات. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پہلے حکم لگاؤ. ارے حکم میں لگانے والا کون ہوتا ہوں بھائی؟ ایسا کرو کال کاٹ کے جاؤ پھر رسادی. میں کال کیوں کاٹوں گا؟ رشیدی آپ تمہاری پھٹ رہی ہے نا بھائی، کیا کریں؟ معاذ اللہ مولوی ہو کے ایسی باتیں بول رہا ہے. میں بولوں تو چلے گا. سن بے میں بولوں تو چلے گا مگر تو بولے گا تو نہیں چلے گا. میں بولا اسی لیے میں اس کو میں منتخب کیا تھا. دیکھتا ہوں تمہارا عقائد کتنی اچھی ہے، کتنے درست ہے، اور آگے آگے کیا بول رہا تم. اسی لیے میں بولا تھا کہ اللہ کے نبی جب تم لوگ بولتے ہو کہ یہاں ہمارے گھر پہ حاضر ہوئے یا ہمارے مسجد میں آ گئے تو تم لوگ اتنی بے شرم ہو کہ اللہ کے نبی پیچھے نماز پڑھتے تم نماز پڑھاتے ہو. بے شرم نہیں بولا جاتا ہے شیطان کے پتر، اتنے بے شرم بولا جاتا ہے. پہلے الفاظ تو سدھار. پہلے سوچو ذرا، تم سوچو اس بات کو کہ اللہ کے نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ادھر ہاں لعنت اللہ علی الکاذبین. تمہارے عقیدے کے اوپر میں یہ دنیا کے کسی دیوبندی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو کسی بھی عقیدے پر یہ بات کر سکے. اس نے حاضر و ناظر کا موضوع چنا. اس میں اس کو آسانی ہوگی تبھی چنا ہوگا. آسانی ابھی حکم نہیں لگا رہا ہے میرے اوپر. ارے ہمت ہے تو حکم لگا. امام بخاری، امام تیمیہ سب میں اختلاف ہے. کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو اٹھا کے پڑھ کے دیکھو. مسلمانوں دیکھ رہے ہیں علمی اختلاف ہوتا ہے. اسی لیے گزارش ہے کہ اس وہی شیطان ہے جس کو میں نے اتنا بڑا شیطان ہے، یہ جس کو میں نے ختم نبوت پر دلیل کیا تھا. یہ وہی رفاقی پتاتی ہے، وہ وہی رشیدی ہے جس نے بارے میں بھی پتا نہیں ہے. ہے کہ جس نے میں بارہا سوال کر رہا ہوں. کاشمی کے ہونے کے بعد اس نے مجھے گالی بکی تھی میں آتے ہیں اور اب تم آپ کو بتا رہا ہے کہ میں شرم آنی چاہیے نا. بتائیے امام اللہ کے نبی سے بڑے ہیں.